1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 8 चैप्टर 28 वर्स से 34 वर्स और मैथ्यू 9 चैप्टर 1 to 17 वर्स और जेनेसिस 27 चैप्टर और 28 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 से 34 वचन। आगे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में 1 वचन से लेकर 17 वचन तक। फिर उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय और 28 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम मैथ्यू 8th चैप्टर 28 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे 34 वचन तक। फिर 9th चैप्टर आगे पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine. And behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told everything and what was befallen to the possessed of the devils. And behold, the whole city came out to meet Jesus. And when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts. Chapter 9. Christ cureth the palsy, calleth Matthew, eateth with publicans and sinners, etc. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 17th वर्स तक। And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then saith he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. And he arose and departed to his house. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which had given such power unto men. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Then came to him the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish, but they put new wine into new bottles, and both are preserved. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय से लेकर 34 वचन तक, फिर 9 अध्याय के अंदर से 1 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे हिंदी बाइबल BSI में से। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उसे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। लकवे के रोगी को चंगा करना। 9 अध्याय पहले वचन से। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। 9 वचन से आगे। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। वह यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो।
मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न 14 वचन से आगे। तब यूहन्ना के चेलों ने उसको उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वरन काई नहीं लगाता। एक मिनट। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। उत्पत्ति 27 अध्याय और 28 अध्याय पढ़ेंगे इंग्लिश में। जेनेसिस 27 चैप्टर और 28 चैप्टर पढ़ेंगे। Isaac senteth Esau for venison. Jacob, instructed by Rebekah, obtaineth the blessing. Esau's complaint. He threateneth Jacob's life. Rebekah senteth Jacob to Laban. And it came to pass that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son. And he said unto him, Behold, here am I. And he said, Behold, now I am old, I know not the day of my death. Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison, and make me savory meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless thee before I die. And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, Bring me venison, and make me savory meat, that I may eat and bless thee before the Lord before my death. Now therefore, my son, obey my voice, according to that which I command thee. Go now to the flock, and fetch me from thence 2 good kids of the goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth, and thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man. My father peradventure will fail me, and I shall seem to him as a deceiver, and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son, only obey my voice, and go fetch me them. And he went and fetched and brought them to his mother, and his mother made savory meat, such as his father loveth. And Rebekah took a goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son. And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck. And she gave the savory meat, and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. And he came unto his father and said, My father. And he said, Here am I. Who art thou, my son? And Jacob said unto his father, I am Esau, thy firstborn. I have done according as thou badest me
Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. And Isaac said unto his son, how is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, because the Lord thy God brought it to me. And Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him, and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands. So he blessed him. And he said, art thou my very son Esau? And he said, I am. And he said, bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him. And he did eat, and he brought him wine, and he drank. And his father Isaac said unto him, come near now, and kiss me, my son. And he came near, and kissed him, and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, see, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord hath blessed. Therefore God gave thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine. And let people serve thee, and nations bow down to thee. Be Lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. And he also had made savory meat, and brought it unto his father, and said unto his father, let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me. And Isaac his father said unto him, who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. And Isaac trembled very exceedingly, and said, who? Where is he that hath taken venison and brought it me? And I have eaten of all before thou camest, and have blessed him. Yea, and he shall be blessed. And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, bless me, even me also, O my father. And he said, thy brother came with subtlety, and hath taken away thy blessing. And he said, is not he rightly named Jacob? For he hath supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and behold, now he hath said, hast thou now not reserved a blessing for me? And Isaac answered and said unto Esau, behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants, and with corn and wine have I sustained him. And what shall I do now unto thee, my son? And Esau said unto his father, hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. And Isaac his father answered and said unto him, behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother. And it shall come to pass, when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of a mourning for my father are at hand. Then will I say, my brother Jacob slay. Then will I slay my brother Jacob. And these words of Esau, her elder son, were told to Rebekah, and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, behold thy brother.
Esau, as touching thee, doeth comfort himself, purposing to kill thee. Now therefore, my son, obey my voice and arise, flee thou to Laban my brother to Haran, and tarry with him a few days until thy brother's fury turn away, until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him. Then I will send and fetch thee from thence. Why should I be deprived also of you both in one day? And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life, because of the daughters of Heth. If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as this which are of the daughters of the land, what good shall my life do me? Chapter 28. Chapter 28. Jacob is blessed and sent to Padanaram. His vision and God's promise in a dream. The stone at Bethel, Jacob's vow. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. And Isaac called Jacob and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people, and give thee the blessing of Abraham to thee, and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. And Isaac went away, Jacob, and he went to Padan Aram, unto Laban, son of Bethuel the Syrian, and the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padan Aram to take him a wife from thence, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padan Aram. And Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father, then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mishalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran, and he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set. And he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid, and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it. And he called the name of that place Bethuel, but the name of that city was called Luz.
at the first. And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तो मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरे सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंवार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपने माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथ में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो, याकूब कासा है, पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं? और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंवार थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया, और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले आया, और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया, और उसने पिया।
तब उसका पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसको वस्त्रों का सुगंध पाकर उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष हो पाए। आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। 30 वचन से आगे, जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास से ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूँ कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। आमीन। शबारकाताना कहा। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। याकूब का लाबान के पास जाना। 46 वचन से आगे, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियाँ हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा।
28 अध्याय पहले वचन से। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन राम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम किसी आशीष दे, कि तो यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया, और वह पद्दन अराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। एसाव का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दन राम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दन राम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया, और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब का स्वप्न। याकूब बेर्शेबा से 10 वचन से आगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरात की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ, जब तक तुझको न छोड़ूंगा, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 18 वचन से आगे। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 5 चैप्टर 21 से लेकर 30 वर्स और जेनेसिस 11 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेकर 30 वचन तक और उत्पत्ति 11 अध्याय। जब हम 2 साल के बाइबल रीडिंग का ये वचन सुन लिए हैं, कौन से अध्याय और वचन है, तो इन अध्याय को, इन वचनों को हमने पर्सनल बाइबल स्टडी में व्यक्तिगत रूप से इस वचनों के अधीन रहना है, पढ़ना है, मनन करना है और अभ्यास करना है। ये वचन हमने अभ्यास के लिए लिए हैं, तो आप इसे बाइबल रीडिंग प्लान में
1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में यही वचनों को आप पढ़ के आगे आते हैं, और फिर 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में दोबारा उन्हीं में से आपको मिलता है अध्याय और वचन। इसके लिए हमने 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमारा व्यक्तिगत बाइबल स्टडी का रूप लिए हुए हम उसको अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमारे लिए बाइबल स्टडी प्लान है। तो हम हर एक वचन में से परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे क्या कहना चाहता है, हम में क्या सुधार लाना चाहता है, हमको कौन से वचन का प्रकाशन प्राप्त हो रहा है, इसमें से हम बहुत गहराई से ये अध्याय को, इन वचनों को जो 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में दिया है उसको मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैथ्यू 5 चैप्टर 21 और 21 से 30 वर्स और जेनेसिस 11 चैप्टर, मत्ती रचित 5 अध्याय 21 से 30 वचन और उत्पत्ति 11 अध्याय। ये आज का आपका व्यक्तिगत बाइबल स्टडी प्लान है हम सबका। ये आप पढ़ना भी है और स्टडी भी करना है। व्यक्तिगत में अपने अंदर अकेले में आपने इसको पढ़ना भी है और मनन भी करना है, स्टडी भी करना है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।